Hello students, welcome in biology classes with Rakesh Bhatia. Today we will discuss the topic infertility and its treatment. This is the chapter 4 of unit 1st, and discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. So let us discuss what is infertility. So, infertility is the inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation. Means, if a married couple is staying together for 2 years and there is no possibility of children, then it may be the case of infertility. According to recent report of International Institute of Population Studies, there are about 7 crore infertile people in world. In world there are about 7 crore infertile people, while about 1.5 crore cases of infertility they are in India. The reasons of this could be many, maybe physical or maybe congenital diseases, maybe drug addiction, maybe immunological or even psychological matter may be there. Female infertility may be due to a damaged fallopian tubes, because you know very well कि fertilization जो होगा that will take place inside the fallopian tube. अगर fallopian tube ही female में damage होगी तो fertility नहीं हो पाएगी, fertilization नहीं हो पाएगी, and that will lead to infertility. Absence of ovaries, you know very well ovaries produce egg, and if egg is not produced, if ovary is absent, egg will not be produced. And uterus, absence of uterus or underdeveloped uterus means uterus help in implantation of the zygote. ठीक है? If uterus is underdeveloped or absent, then how the fetus will develop? Or you can say female infertility may also be due to idiopathic infertility, due to failure or abnormal fertilization. अगर fertilization नहीं हो पाती है, कई बार ऐसा होता है कि एग की कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि फर्टिलाइजेशन में नहीं हो पाई, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज दिस आल्सो मे बी द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी. Malformation like adhesion of labia, imperforate hymen may be the reason. Diseases like gonorrheal infection, leukorrhea, we have discussed about the diseases. These are diseases which are sexually transmitted diseases, aggressive diseases होती हैं, जैसे gonorrheal infection है, leukorrhea है, तो वो भी उससे भी क्या हो सकता है कि इन फीमेल में इनफर्टिलिटी आ सकती है. सर्वाइकल स्टीनोसिस, व्हाट इज दिस सर्वाइकल स्टीनोसिस? दैट इज नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन द नेक रीजन. नेक रीजन में स्पाइनल कॉर्ड जो नैरो हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल स्टीनोसिस. दिस मे बी द रीजन ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी. मेल स्टरलिटी इज ड्यू टू, मेल स्टरलिटी के कारण क्या है? रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट. If the sperm count is less in the male, that is called as oligospermia. Means in 1 milliliter of semen, sperm count is less than 15 to 20 million. If the sperm count is less than 15 to 20 million in 1 ml of milliliter of semen, then it is the case of oligospermia. Other reasons are low count of motile sperms, that is called azoospermia. Azoospermia means motility of sperms is less as compared to normal sperms. That condition is called as azoospermia. Absence of penis, that is absolute impotency. If penis is absent, the case is of absolute impotency, that may also lead to male sterility. That next we have cryptorchidism. Cryptorchidism, that is failure of testis to descend in scrotal sac. Means the testis is not able to descend inside the scrotal sac. That is called as cryptorchidism. You must remember this condition, is this disease, that is what is cryptorchidism. Psychological reason may also be there, just like fear, anxiety, guilt sense for sexual act. These are some reasons which lead to male sterility. May be due to some local diseases like hydrocele or scrotal hernia. Hydrocele mean, hydro mean water, means scrotum sac get enlarged with the water, get filled with the water, get swollen, that is called a scrotal hernia. And second disease that will be phimosis. Phimosis means pores skin of the penis cannot be pulled back. That condition, phimosis is a condition
in which foreskin of the penis cannot be pulled back. You can see in the diagrams scrotal hernia as well as phimosis. You can see normal penis as well as the penis that is diseased, orchitis, that is the inflammation of the testis, epididymis as well as testis that get inflamed. उसके बाद आता है varicocele, that is abnormal enlargement of venous plexus in the scrotum. मतलब scrotum sac जो होती है वहां पे जो veins जो होती है वहां की veins, they will get enlarged and they will form a network of veins that is called as venous plexus. So these are some diseases which may cause male sterility. Now we will discuss about the treatment of sterility. In India, often female is blamed for the couple being childless, but more often the problem lies in the male partner. इंडिया में हमेशा देखा गया है कि अगर किसी फैमिली के बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो उसमें फीमेल को ही जो ब्लेम किया जाता है. अगर किसी के परिवार में लड़कियां पैदा होती हैं तो वहां भी फीमेल को ही जो है वो ब्लेम किया जाता है कि ये फीमेल है, इसके लड़की पैदा हो रही है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग मेल चाइल्ड दैट लाइज विद द मेल पार्टनर. तो वैसे ही देखा गया है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो कहाँ आती हैं, जो मेल पार्टनर है उसके अंदर ही ज़्यादातर प्रॉब्लम देखी गई है. सो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स. तो हर एक इलाके में, हर एक गांव में देर आर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स. ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स क्या करते हैं? कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर्स एंड इनेबल्स द कपल टू हैव चिल्ड्रन. मतलब ये इन डिसऑर्डर को क्योर करते हैं और जो कपल्स होते हैं उनको इनेबल करते हैं कि उनके बच्चे पैदा हो सकें. हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जहां पर ऐसी करेक्शंस पॉसिबल नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का समाधान नहीं हो सकता, डिजीज ठीक नहीं हो सकती, द कपल्स कुड हैव द चिल्ड्रंस बाय सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. तो वहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है assisted reproductive technology, that is also called as ARTs. ART includes the following techniques. अब ART में जो है वो अलग अलग से टेक्निक है जिनसे जो है वो चाइल्डलेस जो कपल है वो चाइल्डफुल हो सकता है, मतलब उसमें बच्चे पैदा हो सकते हैं. उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं? पहला टेक्निक है ART में, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी. दूसरा है गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT का जो फुल फॉर्म है दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. उसके बाद जो थर्ड टेक्निक है दैट इज ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज AI मीन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो दीज आर फ्यू मेथड्स बाय विच द इनफर्टाइल कपल हैव चिल्ड्रन. We will discuss the first ART, that is test tube baby. Test tube baby जो है that is in vitro fertilization. You might have studied about in vivo and in vitro. In vivo means in natural conditions और in vitro fertilization mean IVF, in vitro. In vitro का मतलब है कि जो भी यहाँ fertilization होगी that will be outside the body in the controlled environment or you can call it as laboratory condition. तो in vitro fertilization that is IVF, it is fertilization outside the body in almost conditions as that in the body. जैसे body की conditions होगी वैसे ही लेबोरेटरी में कंडीशन मेंटेन की जाएगी और फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी. फर्टिलाइजेशन किसकी होगी? एग और स्पर्म की. तो इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो इट इज द टेक्निक विच इज यूज्ड इन टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड. IVF इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. अब जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है. मीन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट का जब डिवीजन होगा 8 सेल जाइगोट 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल एंड 32 सेल स्टेज में जब जाइगोट चला जाएगा तो दैट जाइगोट विल बी ट्रांसफर्ड इन द यूट्रस ऑफ नॉर्मल फीमेल टू स्टार्ट फर्दर डेवलपमेंट लीडिंग टू नॉर्मल बर्थ. उसके बाद क्या होगा कि उस जाइगोट को, उस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? नॉर्मल फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे और वहां पर आगे की डेवलपमेंट होगी जिससे कि बच्चे का नॉर्मल बर्थ होगा. दिस चाइल्ड डेवलप बाय दिस मेथड इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी. अब इस तरीके से चाइल्ड डेवलप हुआ है मींस IVF मेथड से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड से जो चाइल्ड डेवलप हुआ है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. इससे जो चाइल्ड डेवलप हुआ दैट चाइल्ड इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी. वी विल डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलपमेंट.
तो प्रोसीजर में हम पहला जो पॉइंट इसमें क्या आएगा, रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, मतलब एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम को निकाला जाएगा कहां से, फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप की हेल्प से, लेप्रोस्कोपी से जो है एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से निकाला जाएगा और उस ओवम को कहां रखा जाएगा, अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन मींस वहां पे इन्फेक्शन का चांस नहीं है, मतलब अंडर एसेप्टिक कंडीशन में ओवम को रखेंगे और फिर क्या होगा, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल इज कलेक्टेड, हस्बैंड या डोनर मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद यू नो वेरी वेल फर्टिलाइजेशन विल बी देयर। Fertilization, what is fertilization? Fusion of sperm and ovum in culture medium outside the female body to form zygote, मतलब outside the medium, IVF mean in vitro fertilization technique जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा। फिर क्या होगा, जाइगोट बनेगा and zygote is to be related to develop in vitro up to 32 cell stage, मतलब जाइगोट को बॉडी से बाहर ही 16 to 32 सेल स्टेज में डेवलप करेंगे और उसको क्या करेंगे, यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। तो यू नो वेरी वेल the zygote when it is in 16 to 30 cell stage that is called as morula, मतलब इस स्टेज तक क्या होता है कि जाइगोट के अंदर डिवीजन तो होता है लेकिन सेल का साइज इंक्रीज नहीं करता है। तो यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मोरूला स्टेज। तो 16 to 32 सेल स्टेज in which the zygote look like embryo, look like little mulberry, that stage is called as morula stage. Now morula, that is 16 to 32 cell stage, embryo is implanted on the endometrium of uterus. You know very well, uterus की जो अंदर की बार है जहां पे implantation होगी, that wall is called as endometrium. We have already discussed in detail about these topics. Further development of fetus continues in the womb till it is born. और आगे की डेवलपमेंट जो कहाँ होगी, यूट्रस के अंदर होगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल वॉम्ब। तो वहां पे जो फर्टिलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट आगे की होगी और बेबी डेवलप्ड बाय सच मेथड इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस तरीके से जो बेबी डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेथड? तो इस मेथड का फायदा क्या है? इट इज द बून फॉर इनफर्टाइल कपल्स। ये जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं कपल, उनके लिए क्या है, ये बून है। इट कैन बी यूज्ड फॉर मैन विद ओलिगोस्पर्मिया। यू नो व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? जहां पे sperm count is less than 15 to 20 lakhs per million in 1 milliliter of semen, that is called as oligospermia. Old superior cows can donate egg oocyte. अब अगर फीमेल के अंदर एग नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो ओल्ड गाय जो है वो भी एग उसके लिए डोनेट कर सकती है। Embryo can be frozen and preserved in embryo tank for 10 years of future use. तो इस मेथड से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको हम 10 साल तक इकट्ठा रख सकते हैं, एक फ्रोजन करके रख सकते हैं एम्ब्रियो टैंक में, और 10 साल तक इस चीज को यूज कर सकते हैं, फ्यूचर यूज कर सकते हैं। इन रेयर केसेस सैरोगेट मदर मे हैव टू बी यूज टू ब्रिंग अप द विट्रो फर्टिलाइज्ड ओवम टू मैच्योरिटी। सैरोगेट मदर क्या होता है? अब सैरोगेट मदर में होता है कि फीमेल जो है उसका एग होगा, मेल का जो स्पर्म होगा, उनकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा दी जाएगी आउटसाइड द बॉडी, और जो एम्ब्रियो होगा वो किसी तीसरी औरत के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सैरोगेट मदर। तो सैरोगेसी मींस मेल फीमेल है, और जो एम्ब्रियो है दैट इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द यूट्रस ऑफ थर्ड फीमेल विच डजंट बिलोंग टू, जिनका स्पर्म और एग है उनसे अलग से जो मदर जो यूज होगी वहां पे बेबी डेवलपमेंट के लिए, उसको हम बोलेंगे सैरोगेट मदर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैरोगेसी आल्सो। तो हिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ा सा कि टेस्ट ट्यूब बेबी की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलपमेंट का प्लान जो है साइंटिस्ट के माइंड में आया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस टेस्ट ट्यूब बेबी वाज मेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर पेट्रुकी इन 1959। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बोर्न टू लेस्ले एंड गिलबर्ट ब्राउन। लेस्ले और गिलबर्ट ब्राउन जो है कपल है, उनके जो है यहाँ जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है दैट वाज बोर्न on July 25, 1978 in England. It was done by Dr. Petricki and Robert Edward as Mrs. Braun has obstructed fallopian tubes. अब Mrs. Braun में क्या प्रॉब्लम थी कि उनकी जो fallopian tube थी that was obstructed, और Mrs. Braun के यहाँ पर जो first test tube baby that was baby girl, और that baby girl was named as Louis Joy Braun. Louis Joy Braun नाम की बेबी जो है वो that was developed on 25 of July 1978 in England to the couple. That couple is Leslie and Gilbert Braun. India's first test tube baby and the second test tube baby of the world was born on 3rd October 1978.
अब वर्ल्ड का जो फर्स्ट ट्यूब बेबी था वो पहले डेवलप हो चुका था, लेकिन इंडिया में जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप हुआ दैट वाज बोर्न ऑन 3 अक्टूबर 1978 इन कोलकाता। दिस गर्ल वाज नेम्ड एज कनुप्रिया अग्रवाल। इस जो लड़की टेस्ट ट्यूब मेथड से पैदा हुई उस लड़की का नाम था कनुप्रिया अग्रवाल एंड निक नेम्ड एज दुर्गा, और इसका जो निक नेम था दैट वाज दुर्गा। इट वाज क्रिएटेड बाय डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। तो सबसे पहले जो कनुप्रिया अग्रवाल जो टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया की है और वर्ल्ड की सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी दैट वाज क्रिएटेड बाय डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, बट ही वाज नॉट अलाउड टू शेयर हिज अचीवमेंट विद द इंटरनेशनल scientific community. Dr. Mukherjee was harassed because he was not allowed to share his achievement with the international scientific community. So, officially accepted India's first test tube baby was Harsha, produced by Dr. Indra Hinduja of KEM Hospital in Mumbai in 6th August 1986. तो हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर जो मुखर्जी था उन्होंने 1978 में जो बेबी डेवलप की थी टेस्ट ट्यूब मेथड से, लेकिन उसको जो है वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप हुई दैट वाज डेवलप्ड आफ्टर 8 इयर्स, दैट इज इन 6 अगस्त 1986 इन मुंबई, और नेम जो था उसका दैट वाज हर्ष। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ET, that is embryo transfer, is of two types on the basis of stage of embryo transfer. मतलब embryo transfer कौन सी स्टेज में होगा उसके हिसाब से हम बात करें तो IVF in vitro fertilization embryo transfer is of two types. First is GIFT, ZIFT, that is called as zygotic intrafallopian transfer. Zygote intrafallopian transfer. It involves the transfer of zygote or embryo in 8-celled stage, that is also called 8 blastomere stage in fallopian tube of the female. ट्रांसफर कहाँ होगा? fallopian tube में ट्रांसफर करेंगे। और दूसरा जो मेथड दैट इज IUT, that is intra-uterine transfer. It involves the transfer of embryo especially at 16 to 32 cell stage in the uterus of the female. As I told you earlier that 16 to 32 cell stage is called as morula stage. Second ART technique, that is GIFT, that is also called as gamete intrafallopian transfer. This technique is employed in the female having at least one patent fallopian tube and normal uterus. अब ये गिफ्ट जो टेक्निक है वो कहाँ यूज होगी? उन फीमेल में यूज होगी जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्टेड है लेकिन एक जो है वो सही फेलोपियन ट्यूब है और यूट्रस भी इसका नॉर्मल है. इट इज यूजफुल वेयर फिम्ब्रिया फेल्स टू capture the ovum or the female have sperm antibodies in their cervical secretion. मतलब ये कहाँ पर यूजफुल है कि जहाँ पर जो फिम्ब्रिया क्या होता है जो होल्ड करके रखते हैं किसको? ओवरी को होल्ड करके रखते हैं, उसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहेंगे फिम्ब्रिया जो है क्या करती है? ओवम को कैप्चर करती है. तो उन केसेस में जहाँ फिम्ब्रिया ओवम को कैप्चर करने में फेल हो जाते हैं वहाँ पर ये यूज टेक्निक होता है. या उन केसेस में जहाँ पे फीमेल जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं जो कि स्पर्म जो है उन एंटीबॉडीज को मतलब क्रोड नहीं कर पाता है, उनसे फाइट नहीं कर पाता है, तो वहां पर दिस गिफ्ट टेक्निक इज यूज्ड. इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वास्ट स्पर्म्स एंड हार्वेस्टेड ओवा टू द एम्पल ऑफ फेलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप. अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक जो स्पर्म है लेबोरेटरी कंडीशंस से स्पर्म निकाल के जिसको हम कहते हैं वास्ट स्पर्म, उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है? एम्पुला में. एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप. और उसी एम्पुला रीजन में क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज करवाई जाती है वहां पे. ठीक है, तो दिस इज गिफ्ट. ART वी हैव ICSI. ICSI का मतलब जैसे मैंने पहले बताया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इन दिस टेक्निक स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन कल्चर मीडियम इन लेबोरेटरी कंडीशन. लेबोरेटरी कंडीशन मीन इन विट्रो. इन विट्रो क्या किया जाता है कि स्पर्म का डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया जाता है किसमें? ओवम में. एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड विच इज ट्रांसफर्ड इन द फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. जाइगोट जो बनता है उसको यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे किसके लिए? फर्दर डेवलपमेंट के लिए. इट इज मेनली एम्प्लॉयड व्हेन मेल सफर फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया एंड अजूस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया देयर स्पर्म काउंट इज लेस एंड अजूस्पर्मिया you know very well when the motility of the sperm is less, that is called as azoospermia. Last method of ART we have AI, that is artificial insemination. In this technique semen of the male partner is collected
concentrated and finally introduced into the vagina of female and is also called as intrauterine insemination. If the donor of the semen is husband, then it is called as artificial insemination husband. यहाँ पे जो है वो डोनर सीमन किसी डोनर से भी लिया जा, किसी दूसरे पर्सन से भी लिया जा सकता है, और अगर जो डोनर जो हस्बैंड है पर्टिकुलर, देन it is also called AIH, that is artificial insemination husband. Now there are various drawbacks of assisted reproductive technologies, that is ARTs. It is not possible in women with damaged uterine wall, क्योंकि आपको पता है कि जब मुरुला स्टेज है, चाहे जाइगोट का ट्रांसफर होगा वो कहाँ पे होगा, दैट विल बी द यूट्राइन वॉल. जहाँ पे जिस फीमेल में यूट्राइन वॉल डैमेज्ड है वहाँ पे ये ART जो है वो काम नहीं करेगा, टेक्निक काम नहीं करेंगे. दीज टेक्निक्स नीड्स हाई प्रिसीजन, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन. ये बहुत ही कॉस्टली टेक्निक्स हैं, हाई प्रिसीजन चाहिए, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है. These have raised several ethical and legal problems. यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फैमिली में बच्चा पैदा नहीं कर पाती है फैमिली, अगर वो इस तरीके से बच्चा पैदा करती है तो वहाँ पे कई बार एथिकल और लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो लोग उनको कहते हैं कि नहीं भाई, सोशली थोड़ा सा इनको एथिकल प्रॉब्लम और लीगल प्रॉब्लम में बच्चा फैमिली फंस सकती है. मेजर डिसएडवांटेज ऑफ IVF ET. IVF मीन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ET that is embryo transfer is its low success rate, that is only 20% cases this ART techniques are successful. तो इनका जो successful rate है that is 20%. So this is all about this ARTs and infertility. I think you can understand all these things. For more consultancy you can contact you can read in your books. बुक्स में आप पढ़िए, क्योंकि बुक्स में हर चीज़ जो है क्लियरली दी गई है. आई हैव मैंने भी जो बुक है NCERT की बुक को फॉलो किया है, और NCERT की बुक के साथ साथ कुछ जो है वो मॉडर्न की जो किताब है उससे कुछ कंटेंट लिया गया है. मतलब सारी किताबों का कंटेंट इकट्ठा करके आपके लिए एक बढ़िया सा मटेरियल तैयार किया गया है. तो होप यू विल लाइक इट, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.